Good morning, church. I'm Marina, and my testimony, I'm just given little time. So I'll just, yeah. So my greatest testimony is that we got married in 2009, but we didn't have a child. And we used to pray for a child. Yeah, the faith was there, but then there were a lot of other things along with the faith. It was just not the faith, but there were a lot of things that had to be like removed from my life actually, which I realize it now, because those days I used to literally fight with the Lord. I used to say, I trust in you, and why are you not working in my life? There were people who used to come in our house, get healed and go, and then it was me who was there and without a child. And there were times wherein I decided, oh, I'm going to do it on my own. I did a great diet. I lost my weight. Okay, prior to that, we did a lot of medicines and all that stuff, but it did not work for us. And then I tried myself, but it didn't. I failed completely. I was a loser that time. So yeah, and then I said, Lord, it is not by my will. I humbled down myself. The Lord took away that pride. He doesn't look at the people who are proud. He loves those who are humble. He wants to give everybody. He wants to give. We have our deepest desires, and you think he doesn't know? He is our creator. You think he doesn't know your deepest desires? You think he doesn't know the deepest good desires? I mean, not all the desires. I mean to say the good desires. He definitely knows. He's our father. He's a good, good father. Okay, and then he knew, because when he brings the man and the woman together, he has blessed us to flourish and to multiply. And why won't he give? Because his word says, no woman in his land will be barren. Okay? And I grabbed that word. And yes, there was a time wherein I was totally broken. My husband was broken. He's not here. He loved to be here. He'll come here one day. Whenever I'm in Margaon, like I try to attend a church here. And the Lord worked in our life. And we received Isaiah in 10 years. That's my son sitting there. We are a living example that his delay is not the denial. If you are praying for something, trust, wait upon the Lord, okay? And you're going to receive it. Thank you. Good morning, church. Mige हात मुयताले न्हिदत तेन्ना मगे हात गोड जाताले आनी मगे प्रेयरा वयतालो पास्टरा थिंगा तेन्ना पास्टरा सांगतालो आनी प्रेयराचेर मगेले हात भर जाले जेजून म्हाका हात लायलो. थँक यू. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. सचमुच प्रभु महान और दयालु परमेश्वर है. मेरी गवाही है, गए लास्ट महीने में 26 तारीख को मैं अचानक देहरादून गया. मेरा जीजा का तबीयत सीरियस था, वो आईसीयू में था, और मैं वहाँ 5 बजे 5:30 बजे पहुँच गया था देहरादून में. सीधा हॉस्पिटल गया एयरपोर्ट से, और वहाँ गया तो भांजा था. भांजा बोला, जीजा मामा को पिताजी को तो होश नहीं, अभी कैसे मिलेंगे? मैं बोला ठीक है, हो जाएगा. मैं उसके साथ बैठा, थोड़ी देर प्रार्थना किया, और 6 बजे वो आईसीयू में जाने को टाइम देता मिलने के लिए. तो पहले भांजा गया, वो बोला मैं जाके आता हूँ, आप बाद में जाओ. मैं गया, बाद में आया. मैं बोला उनको होश नहीं. मैं गया और मैं बाद में उनके लिए प्रार्थना किया थोड़ा, तो उन्होंने आँख खोला और मेरे को बोला अकेला आया कि बच्चों को भी लेके आया? मैं बोला नहीं, मैं अकेला आया, बच्चा लोग बाद में आएगा बोला. और सचमुच प्रभु जो बातें नहीं कर रहा था, आँख नहीं खुल रहा था, लेकिन प्रभु ने उसको इतना सामर्थ्य दिया कि वो मेरे को पहचान भी गया. मैं कम से कम 2010 के बाद मिला उनसे, और सच में प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ. और उन्होंने आँख भी खोला, थोड़ा देर बात किया, फिर वो थोड़ा दवाई का भी उनको था रिएक्शन, तो ऐसे ही थोड़ा अनकॉन्शियस जैसे थे. और मैं उनको बोला, प्रार्थना किया, मैं बोला जीजा कुछ नहीं होता है, प्रभु आपको चंगा करेगा, और आप 2 दिन में कैसे भी जनरल वार्ड में आएगा. और मैं सच में प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. दूसरे दिन डॉक्टर ने बोला था कल देखिएगा उनको जनरल वार्ड में, लेकिन फिर सुबह उनका प्रेशर शुगर ऊपर नीचे होने लगा है. और मैं सोचा था, मैं दीदी को बोला था, दीदी कैसे भी जी जनरल वार्ड में आ जाएंगे तब हम बात करेंगे, बोला सब बैठ के. लेकिन उनका फिर सुबह तबीयत ख़राब हो गया. मैं बोलेगा क्या करें, मैं भी थोड़ा मैं दीदी को बोला था मेरे जाने से पहले जीजा जी को जनरल वार्ड में आएगा ही. मैं बोला विश्वास रखो. मैंने प्रार्थना किया, हम सब ने उनके घर में प्रार्थना किया. वो लोग हिंदू से हैं, लेकिन एक टाइम ही होता है जब प्रभु एक कार्य करता है.
और मैं सच में प्रभु को देना 27 तारीख को भी उनका तबीयत खराब हो गया, 28 को भी खराब हो गया। बाद में मैं बोला दीदी क्या करेगा, अब मुश्किल ही लगता है उनको जनवाड़ा में, मैं जाते हैं बोला। मैंने 29 का टिकट 30 का टिकट निकाला, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। 29 तारीख को मैं वो मसूरी से सीधा अपना सामान लेके आया और मैं हॉस्पिटल ही पहुँचा। मैं बोला जो भी होगा मिल के चले जाएगा और क्या करेगा। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, सच में प्रभु ने उनको जन्नत वार्ड में शिफ्ट कर दिया रात को 8:30-9 बजे। और तब दीदी मेरे को बोलने लगा, मैं बोला दीदी तू विश्वास रख, कुछ नहीं होता है, जिया जी चंगा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और सच में जिया जी जन्नत वार्ड में आगे रात भर हमने बातचीत किया, लेकिन उनको थोड़ा वीकनेस भी था और वापस उनका फिर पोटेशियम डाउन हो गया। फिर थोड़ा उनको वह बातचीत किया और मैं उनको सुबह पूछा 29 को, मैं बोला जी कुछ खाने का, तो मेरे को बोला मेरे को मटन सूप मांगता है बोला। वही टाइम मेरा भाई भी पहुंच गया, मेरा भाभी भी पहुंच गया, छोटे भाई का मैसेज भी पहुंच गया और मैं उनको सबको आया, मैं सबके सामने प्रार्थना किया। मैं बोला मैं तो 2 बजे निकलने वाला है, मैं एक बार प्रार्थना कर लेता हूँ। तो भाई मेरे को बोलने लगे अरे तू सनातन धर्म का हो गया, क्या प्रार्थना करेगा। मैं बोला मेरा प्रभु सबसे महान है, तुम मेरे को कुछ मत बोला, मेरा प्रभु को मैं जानता है, मेरा विश्वास मेरे प्रभु के ऊपर में, अब मेरा प्रभु चंगा करेगा। और सच मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जिया जी को मटन सूप तो नहीं मिला, लेकिन चिकन सूप मैं खुद जाके किसी होटल से बना के लेके आया, उनको चिकन क्लियर सूप मांगता था। वो बोला हमारे पास नहीं। मैं बोला यार भाई हमारे इधर की थे वो लोग, मैं बोला मैं बना लेता हूँ, जो भी आपका चार्ज ले लो, बोला प्रॉब्लम नहीं, तो आप बना लो। बोला मैं बना के ले गया, मटन तो नहीं था लेकिन चिकन सूप पिला, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ।